Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing the different observational studies types and their analysis and strategies. And now, and in the last lecture, we were discussing case control study. In the case control study, we have already discussed the types of case control study, how you can diagram of typical case control study, that cases and control group, and then the selection of cases and control, and then the types of case control study: population based case control study, nested case control study, hospital or clinical based or clinic based case control study, exposure time period, window, latency period, induction period, and analytical framework of case control study, analysis of the case control study. This is the last slide which we have discussed in our last lecture at the end. Now today we are going to continue with the example. In case control study of exposure of statin, here we have example of statins which we use for the reduction of cholesterol. Statin exposure among cases and control group. Statin exposed and statin unexposed means those patients who have taken statin and those patients who have not taken statin. And here the prostate cancer groups and the control group who did not develop the prostate cancer. So statin exposed patients means that the prostate cancer patients, and they have taken statin. Number of patients reported are 34. While in the control group, and in the control group there is no disease, no prostate cancer, and they were taking statin, but they are 99 in number. Similarly, unexposed statin group means patient who have not taken the statins. They are 66 in number, but they have developed the prostate cancer. And those patients who neither have taken the statin and nor they have developed the prostate cancer, they are in count 103. So A, B, C, and D. So as per formula from the previous slides, the odds being exposed, odds being control cases group, odds of cases group, odds of control group, and the odd ratio. So odds of being exposed among cases, so odds of cases 0.52. Odds of exposed among control means odds of control group 0.96. Odd ratio 0.54. So in this study, the odd ratio suggests means what is the interpretation of this 0.54? In this study, the odd ratio suggests that statin use was inversely associated with prostate cancer. Means inversely associated means that use of statin can reduce the risk of prostate cancer, where the odds of statins use among prostate cancer cases is approximately half the odds of statin use among control. Means that the number of cases in control group are double than the odds the statin group with the prostate cancer, or in the otherwise that the odds of statins group with the cases are half than the odds of among statin use among control group. So this is the interpretation. Okay, so about the interpretation technique, if odd ratio is greater than 1, that direct relationship associated, and you know that here the odd relationship is less than 1, that is 0.54, which is showing inverse relationship. And as a general rule, the odd ratio is greater than 1, the direct relationship associated, and if odd ratio is less than 1, the inverse relationship associated. If you just remember this key point, that if odd ratio is coming greater than 1, then there is the relationship between prostate cancer and statin is inverse. If it is greater than 1, direct relationship means that more exposure to statin, more chances of prostate cancer. But if the odd ratio is less than 1, then inverse relationship means more exposure to statin, less chances of prostate cancer. So this is called inverse relationship. Now the another important point, that is confounder adjustment. What are the confounders? Confounders are those factors or variables in our study that make a doubtful relationship in between
independent variable and dependent variable. Like here in our study, the independent variable is statin and the dependent variable is prostate cancer, and we are determining here that statin exposure can reduce the risk of prostate cancer or increases the risk of prostate cancer, and we have found inverse relationship that a statin expose reduces the chances of prostate cancer or reduces the risk of prostate cancer. So this is a relationship, but if any third factor or third variable involve here, that will be considered as confounder, because कि वो ये relationship जो है कि statin जो है वो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट के रिस्क को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो वो कन्फाउंडर जो होंगे वो प्रॉब्लम करेंगे, वो डाउट कर देंगे कि क्या वाकई स्टैटिन कम करते हैं या नहीं करते. सो कन्फाउंडर एडजस्टमेंट इज नेसेसरी. मैच और रिस्ट्रिक्ट द सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केसेस. ओके, मैच और रिस्ट्रिक्ट द सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केसेस मीन्स के दोनों के केसेस और कंट्रोल में केसेस की बेस पे दोनों को आपने मैच या रिस्ट्रिक्ट नहीं करना. मैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द केस एंड कंट्रोल सिमिलर. बैलेंस होना चाहिए दोनों जगह सेम टाइप के पेशेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, इन ए स्टडी एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ न्यू टॉपिकल ऑइंटमेंट इन प्रेशर अल्सर्स हीलिंग. ठीक है, एक हम स्टडी करना चाह रहे हैं, न्यू टॉपिकल ऑइंटमेंट है और चेक क्या करना चाह रहे हैं, प्रेशर अल्सर्स हीलिंग. जो प्रेशर अल्सर स्किन पे पड़ जाते हैं, बैड सोर्स वगैरह, तो उनकी हीलिंग के लिए एक ऑइंटमेंट डेवलप किया गया, तो उसके वो चेक करना चाह रहे हैं. ईच कंट्रोल मीन्स विदाउट डिजीज शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक केसेस विद डिजीज. यानी जो पेशेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हों वो दोनों में सिमिलर हो, ताकि किसी किस्म का कन्फाउंडर ना आए. सो कंट्रोल शुड हैव ए रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर एट सेम लोकेशन, मीन्स के इवन के लोकेशन भी सेम हो, कि यानी जिन पेशेंट्स को जो विद डिजीज़ हैं यानी प्रेशर अल्सर वाले वो पेशेंट्स और जो केसेस हैं दोनों को जो रिस्क या जिनको अल्सर हो गया है, तो जिनको यानी जो कंट्रोल ग्रुप है जिनको नहीं हुआ है उनको भी रिस्क उसी जगह पे होना चाहिए प्रेशर अल्सर का जहाँ पर उन पेशेंट्स को प्रेशर अल्सर डेवलप हो गया है जो कि केसेस में शामिल है, ताकि ये सही मालूम हो सके कि ये उन जगहों के प्रेशर अल्सर्स को हील करता है ये वाला ऑइंटमेंट या नहीं करता. नाउ हियर वी विल डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ कोहोर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन. दोनों में फ़र्क क्या है. हम कोहोर्ट स्टडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में. आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंट्रोल स्टडी भी, केस कंट्रोल स्टडी भी हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम करने जा रहे हैं दोनों का कंपैरिजन. यहाँ पर हम फ्यू पॉइंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द कोहोर्ट स्टडी डिज़ाइन एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन. कोहोर्ट स्टडी डिज़ाइन की अगर हम बात की करें तो डायरेक्टली एस्टिमेट रेट्स, रिस्क, रेट रेशोज, रिस्क रेशोज एंड रिस्क डिफरेंसेस. ठीक है, डायरेक्टली एस्टिमेट करते हैं. स्टडी रेयर एक्सपोजर की होगी, स्टडी मल्टीपल आउटकम्स हम यहाँ ले सकते हैं. लेस प्रोन टू रिकॉल बायसेस. ठीक है, इसमें रिकॉल बायस नहीं, क्योंकि चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो है वो आप जो कोहोर्ट ले रहे हैं, जो कोहोर्ट ग्रुप बनाए गए हैं उसमें जो है वो इवेल्युएट कर रहे हैं और चांसेस बहुत कम है रिकॉल बायसेस के, यानी अपनी मेमोरी जो है वो उसकी बेस पे बायसेस के चांसेस कम है. मोर अपॉर्चुनिटी टू वैलिडेट स्टडी मेजर इफ प्रोस्पेक्टिव. तो रिजल्ट जो होंगे वो ज़्यादा वैलिडेटेड होंगे अगर ये प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी की जा रही है. लेस रिस्क ऑफ सिलेक्शन बायस एंड टेम्पोरल एम्बिग्विटी. ठीक है ना, यानी जो बाज़ाहिर एम्बिग्विटी हो या बायस हो, सिलेक्शन बायस हो यानी पेशेंट सिलेक्शन, उसके चांसेस भी इसमें कम है. केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन की बात की जाए, टिपिकली क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव टू कंडक्ट, यानी कंपेयर टू कोहोर्ट स्टडी वो जो है वो टाइम ज़्यादा भी लेती है, और कंपेयर टू कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी इज़ जो है वो एक्सपेंसिव, और ये जो केस कंट्रोल है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि आप जो केसेस ऑलरेडी हैं उनको इस स्टडी में शामिल कर रहे हैं. स्टडी रेयर आउटकम, ये जो है स्टडी रेयर एक्सपोजर के लिए की जाती है और ये स्टडी रेयर आउटकम्स के लिए डिज़ाइन की जाती है, यानी जिसमें बहुत कम आउटकम्स आते हों. स्टडी आउटकम विद लॉन्ग लेटेंसी एंड इंडक्शन पीरियड. आमतौर पे ये स्टडी जो है मल्टीपल आउटकम्स के लिए अच्छी है, केस कोहोर्ट स्टडी, और ये स्टडी जो केस कंट्रोल स्टडी है ये उन स्टडीज़ के लिए अच्छी हैं जिनका जो है लेटेंसी पीरियड लॉन्ग हो या इंडक्शन पीरियड लॉन्ग हो. स्टडी मल्टीपल एक्सपोजर. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल एक्सपोजर आप ले सकते हैं.
यहाँ पे मल्टीपल आउटकम ले सकते हैं। यूजुअली रिक्वायर फ्यूअर सब्जेक्ट्स, ठीक है, आमतौर पे बहुत कम सब्जेक्ट में ये स्टडी कंडक्ट की जा सकती है, जबकि कोहॉर्ट स्टडी में इसके मुकाबले में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे। तो ये है कंपैरिजन दोनों स्टडी का। अगर आप देखें तो दोनों स्टडीज़ के देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स। तो अब ये आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सी स्टडी ज़्यादा सूटेबल है, जो इकोनॉमिकल भी हो और जो जिसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा वैलिड हो, और आपके एनवायरनमेंट में क्या सूट करता है, किस तरीके से आप कौन सी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए, जिससे आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स ले सकें। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टडी इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। इसमें क्या होगा, एग्जामिन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एट ए क्रॉस सेक्शन मीन्स वन पॉइंट इन टाइम, किसी एक पॉइंट इन टाइम पर क्रॉस सेक्शन यानी वन पॉइंट इन टाइम पर आप पॉपुलेशन की कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को एवेल्युएट कर रहे हैं। रिवील्स descriptive information of population, for example prevalence of disease, like for example prevalence of disease आप मालूम कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के जरिए। तो एग्जामिन एसोसिएशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या उनकी एसोसिएशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन इज सर्वे, ठीक है, सर्वे होगा उसमें। सर्वेज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर्स, आमतौर पर वो स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर्स की बेस पर किए जाते हैं, यानी स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है और फिर उससे उसको जो है वो फिल करवाया जाता है। अक्सर और बेशतर क्वेश्चनियर को फिर वैलिडेट किया जाता है, यानी वैलिडेट करने से ये होता है कि वो क्वेश्चनियर स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है। डिस्क्राइब पॉपुलेशन एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे वो स्टडी होगी तो उस दौरान जो होगी उस पॉपुलेशन की वो कैरेक्टरिस्टिक या डिजीज़ या प्रेवलेंस या इंसिडेंसेस हमें मालूम हो सकेंगे। सर्वेज आर डन बाय, आमतौर पे ये कैसे होते हैं, आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन। कभी कभी कोई बड़ी स्टडी करनी है तो उसके लिए टारगेट पॉपुलेशन आपको चाहिए, तो उसको आपको टारगेट पॉपुलेशन किस में से निकालना है अपना सैम्पल, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए निकाला जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, दोनों तरह की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग या नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग दोनों तरह की सैम्पलिंग की जाती है, यानी जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो और जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो। और समटाइम्स फॉर सम डिजीज डेटा कलेक्शन वी डू सर्वेस। अब हम इसको देखते हैं, आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन, यानी अगर हम इनकी बात करें डिफरेंट सर्वेज की तो हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं और फर्दर एलैबोरेट करते हैं। आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन, लाइक फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन विद डिजायर्ड क्लिनिकल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई पर्टिकुलर क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए पेशेंट्स की और डेमोग्राफिक, लाइक फॉर एग्जांपल वाइट्स में करनी है या सिर्फ ब्लैक्स में करनी है या सिर्फ चाइनीज़ रेस में करनी है और इन पर्टिकुलर एज ग्रुप में करनी है, मेल और फीमेल में करनी है। Patient should have generalizability, extent to which observation in study extrapolate to overall population of interest। जो पॉपुलेशन आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसी फैक्टर्स होने चाहिए कि वो फैक्टर हो उस पॉपुलेशन के, यानी जब आप उस पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ऐसा सैंपल हो कि जो उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को ट्रू सेंस में रिप्रेजेंट करे, यानी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो हो वो उसको सही मानों में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि ताकि जब ये स्टडी कंडक्ट की जाएगी तो इसके रिजल्ट्स को उस पॉपुलेशन पर अप्लाई किया जा सकता हो। क्योंकि अगर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक जो अलग हैं और उसमें से जो आपने सैंपल लिया था उन पेशेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं और जो पॉपुलेशन से सैंपल लेके स्टडी कंडक्ट कर ली और उसके रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं, तो अगर उसकी जो पेशेंट जो आपने लिए थे उस पॉपुलेशन से उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक से वेरी करते होंगे तो फिर रिजल्ट जो होंगे स्टडी के वो उस पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं हो सकते होंगे, तो फिर हमारी स्टडी जो होगी कोई ख़ास काम की नहीं होगी। सैंपल्स फ्रॉम पॉपुलेशन शुड बी सिलेक्टेड बाय रैंडम मेथड बाय सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए आप सैंपल पॉपुलेशन से कलेक्ट करेंगे, जिससे जो है वो चांसेस ऑफ बायसनेस बहुत कम हो जाएंगे। Convenience sampling or purposive sampling procedure used
इफ टारगेट पॉपुलेशन सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल बाय रैंडम मेथड, यानी कन्वीनियंस सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग, यानी अब किसी पर्पज से सिर्फ पास पॉपुलेशन में से सैंपल कलेक्ट किया, तो वो सैंपल आप सिर्फ उस वक्त ले सकते हैं जब जो है वो रैंडम सैम्पलिंग जो है वो पॉसिबल ना हो, कोई रीज़न हो उसका, कोई साउंड रीज़न हो कि हम रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पर नहीं कर सकते. डेटा कलेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेथड और प्रोस्पेक्टिवली प्राइमरी मेथड. अगर हम कोई डेटा जो रेट्रोस्पेक्टिवली किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया है उस डेटा को उठा रहे हैं, तो ये जो स्टडी कहलाएगी सेकेंडरी मेथड कहलाएगी, क्योंकि वो डेटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया होगा और आप उसमें से अपनी रिसर्च इंटरेस्ट की फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी मेथड. तो बाज़ दफ़ा इस डेटा में जो है वो बहुत सारे फ्लॉज होते हैं जो कि जिसके आंसर्स आपको अपनी रिसर्च में नहीं मिल पाते, क्योंकि वो डेटा में वो जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं पता चला उसमें से बहुत सारे पेशेंट की वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं है. जबकि प्रोस्पेक्टिवली जो प्राइमरी मेथड होता है, यानी आप ये फ्यूचर में कलेक्ट करेंगे तो आप इसके लिए प्राइमरी मेथड होगा, इसको डिज़ाइन करेंगे और जो आपको रिसर्च का इंटरेस्ट है उसके पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके मुताबिक आपका क्वेश्चनियर होगा और वो आप तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव प्राइमरी मेथड. तो ये ज़्यादा वैलिड रिजल्ट्स होते हैं उस वजह से कि इसमें कोई चीज़ जो होती है मिसिंग नहीं होती, जबकि सेकेंडरी डेटा में या सेकेंडरी मेथड में रेट्रोस्पेक्टिवली जो करते हैं तो वो जो है उसमें डेटा मिसिंग हो सकता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है. तो उसमें वो इस वजह से रेट्रोस्पेक्टिव जो स्टडी होती है वो कंपेयर टू प्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी वीक होती है. एनालिसिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी. एनालिसिस आप कैसे करेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूजुअली अप्लाइड. आम तौर पर इस पर हम जो स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं. शुरू की हमने लेक्चर में रिसर्च मेथडोलॉजी और डिज़ाइन में हमने ये बात की थी कि आम तौर पे हम दो तरह का जो है वो एनालिसिस करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, दूसरा इन्फरेंशियल एनालिसिस या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो हम जो है यहाँ पर ज़्यादातर क्रॉस सेक्शनल स्टडी में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं. बस इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जहाँ पे कि अगर यहाँ पे कहीं ज़रूरत हो कोई डेटा इस तरह का है कि जहाँ पे हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं या इन्फरेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं, यानी जो टी टेस्ट, जेड टेस्ट या पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जो लिस्ट है उसमें से कोई टेस्ट की ज़रूरत हो और हम वो यहाँ पे ना लगाएं, ऐसा नहीं है. तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे जहाँ पर ज़रूरत हो उस पर्टिकुलर टेस्ट की. डिजीज़ और ड्रग वेरिएबिलिटी ऑन पॉपुलेशन और सैम्पल, मीन्स, मॉड्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इंसिडेंसेस, प्रेवलेंसेस, वेरिएंस एंड प्रपोर्शंस डिटरमिन्स. ये सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं. मीन कैलकुलेट करना, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको RSD यानी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, इंसिडेंसेस मालूम करने हैं डिजीज़ के, प्रेवलेंस मालूम करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है यानी वेरिएंस वो मालूम करना है, प्रपोर्शंस यानी परसेंटेजेस मालूम करनी है. तो ये सब जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है. एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल ऑल्सो डिटरमिन. तो हम बाज़ दफ़ा जो है दो वेरिएबल जो हैं यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वेरिएबिलिटी को चेक, जो वेरिएबल है उनकी एसोसिएशन को भी डिटरमिन करते हैं. फॉर एग्जांपल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ज़रिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे केस कंट्रोल में जैसे ये चेक करना चाह रहे थे कि क्या स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिन्स जो है वो रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर रिड्यूस करता है या नहीं करता, तो उसको हम चेक करना चाह रहे हैं. तो ये रिलेशनशिप, तो हम इसको इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं कि ये पियर्सन कोरिलेशन के ज़रिए और कोरिलेशन मालूम की जा सकती है. इसके अलावा प्री एंड पोस्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़. ये स्टडीज़ क्या होती हैं? रिसर्चर एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन बाय कंपेयरिंग ऑब्जर्वेशन अकरिंग आफ्टर द चेंज टू ऑब्जर्वेशन अकरिंग बिफोर द चेंज. मीन्स दैट रिसर्चर एग्जामिन कर रहा है इफेक्ट ऑफ द इंटरवेंशन. किस चीज़ का इफेक्ट? इंटरवेंशन के इफेक्ट को एग्जामिन कर रहा है बाय कंपेयरिंग. किससे कंपेयर कर रहा है? ऑब्जर्वेशन अकरिंग आफ्टर द चेंज, ठीक है, ऑब्जर्वेशन अकरिंग आफ्टर द चेंज टू ऑब्जर्वेशन अकरिंग बिफोर द चेंज. के यानी कोई चेंज करने से पहले पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या फाइंडिंग्स थी पेशेंट में
और जब वो चेंज कर दिया तो उसके बाद क्या फाइंडिंग है, दोनों में क्या फ़र्क है। यानी फॉर एग्जांपल आपने ड्रग चेंज कर दी या ड्रग नहीं दी और ड्रग दी, ये चेंज है। ऑल्सो टर्म्ड एज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्टडी डिज़ाइन। यानी फॉर एग्जांपल आपने पहले ड्रग नहीं दी थी तो प्री टेस्ट पेशेंट की सिचुएशन क्या थी, पोस्ट टेस्ट ड्रग दी उसके बाद क्या हुआ। ऑब्जर्वेशंस, जिसको बाज़ दफ़ा हम पेयर्ड स्टडी भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर कलेक्टेड बोथ बिफोर एंड आफ्टर ए स्पेसिफिक एक्सपोजर और इंटरवेंशन एंड एलिमिनेटिंग द बायसेस। कोई भी फैक्टर जो होगा जो बायस क्रिएट कर सकता है उसको स्टडी में, जिससे रिजल्ट्स डाउटफुल हो सकते हैं, उनको हम निकाल देंगे, तो वो एलिमिनेट कर देंगे। तो वही इंटरवेंशन, जैसे ड्रग देने से पहले क्या पेशेंट की सिचुएशन थी और ड्रग देने के बाद क्या सिचुएशन है, बिफोर एंड आफ्टर। ऑफन कंडक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली, और बाज़ दफ़ा रेट्रोस्पेक्टिवली भी, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं जो पहले ड्रग नहीं ले रहे थे, अब वो डायग्नोस हो गए, उनको आपने पेशेंट को दवा दे दी, तो दोनों को आप देख सकते हैं कि दवा देने के बाद उनको क्या फ़र्क पड़ा। इसके अलावा एक और स्टडी होती है, दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस किस तरह की स्टडी है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस आर एडेड ओवर टाइम, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आर एडेड ओवर टाइम। रिसर्चर कैन ट्रैक ट्रेंड्स इन एन आउटकम ओवर टाइम, ये भी चेक होगा कि आउटकम पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसमें ट्रेंड क्या है, आउटकम बेहतर हो रहा है या कम हो रहा है या वैसा ही है। It is improvement in pre-test post-test study design where maturation may exist। यानी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में तो बस मैच्योरेशन जब आ जाती है, जब वो स्टडी का रिजल्ट आपके पास सामने आ जाता है, लेकिन इसको हम क्योंकि ट्रेंड भी चेक करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म चलती है कंपेयर टू प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर कैन डिटरमिन द हेल्थ एक्सपेंडिचर बिफोर द हेल्थ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर द हेल्थ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। वो चेक कर रहा है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो क्या आ रहे हैं बिफोर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ ऑफन परफॉर्म्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, ये भी रेट्रोस्पेक्टिवली आमतौर पे की जाती है। इकोलॉजिकल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ में मेक कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल रादर देन बिटवीन इंडिविजुअल देमसेल्व्स, ठीक है। तो दो बिटवीन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल जो होती है वो हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं रादर देन इंडिविजुअल बिटवीन इंडिविजुअल देमसेल्व्स। ग्रुप इंफॉर्मेशन में बी अवेलेबल ऑन आइदर द ट्रीटमेंट एक्सपोजर और आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो ग्रुप की इंफॉर्मेशन है, यानी हम ऐसे ग्रुप लाके स्ट्रेटा बना लेते हैं छोटे छोटे और उन ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो ग्रुप इंफॉर्मेशन में बी अवेलेबल ऑन आइदर द ट्रीटमेंट एक्सपोजर, कि उनको क्या ट्रीटमेंट था, या आउटकम ऑफ इंटरेस्ट यानी उनके रिजल्ट्स क्या थे। ए स्पेसिफिक क्वेश्चन इज एड्रेस इन दिस डिज़ाइन, आमतौर पे कोई स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमें चाहिए होता है। रिसर्च कैन डिटरमिन वेदर पोलियो केसेस आर लोअर इन DHA, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि पोलियो केसेस आर लोअर इन DHA क्लिफ्टन एरिया कंपेयर टू न्यू कराची औरंगी टाउन वेयर अवेयरनेस इज लो अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ये जरा चेक करना चाह रहे हैं कि पोलियो केसेस जो है क्या DHA और क्लिफ्टन में कम है कंपेयर टू न्यू कराची एंड औरंगी टाउन, क्योंकि न्यू कराची और औरंगी टाउन में मसला क्या है कि अवेयरनेस अबाउट वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टडी है दैट इज कॉल्ड केस रिपोर्ट्स। केस रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एक ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कोर्स फ्रॉम ए सिंगल क्लिनिकल सब्जेक्ट और इवेंट विदाउट ए कंपैरिजन। एक कोई पर्टिकुलर केस है, कोई पर्टिकुलर पेशेंट है, उसकी क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कोई पर्टिकुलर पेशेंट की ये सिचुएशन है, उस पर कोई पेशेंट की पर्टिकुलर डिजीज़ है, उस पर वो स्टडी कंडक्ट की जा रही है, सिर्फ सिंगल पेशेंट पे की जा रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट, और उसमें कोई कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा पेशेंट नहीं होता, तो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड केस रिपोर्ट। अच्छा, इसके अलावा इट सर्व्स टू प्रोवाइड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन। तो जो भी पेशेंट होगी उसकी सिचुएशन को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ होगा कि वो पेशेंट क्या है, उसको कैसे मैनेज किया। ख़ास तौर से डिफ़िकल्ट केसेस जो होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है वो इसी तरीके से केस रिपोर्ट की फॉर्म में की जाती है। अच्छा, आमतौर पे दे आर नॉट इंटेंडेड टू लीड टू ए कंक्लूजन और आंसर ए हाइपोथेसिस, क्योंकि ये एक ही पेशेंट पे होती है तो कोई आप कंक्लूजन पे नहीं ले सकते, या कोई रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस इसका रिसर्च का नहीं बना सकते, क्योंकि एक पेशेंट पर है। इस तरह की स्टडी पे आप कोई स्टैटिस्टिक्स भी नहीं लगा सकते। बेसिक फॉर्म ऑफ मेडिकल एविडेंस दैट ऑफन प्रोवाइड
फर्स्ट सस्पिशन दैट एन इशू एग्जिस्ट। आमतौर पे ये मेडिकल एविडेंस के तौर पर एक बेसिक टूल है या बेसिक स्टडी है जिसमें आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि हाँ भाई ये भी कोई एक इशू है जिस इशू को देखने की ज़रूरत है हमको। तो इस वजह से जो है वो ये स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाती है। अच्छा, केस रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ केस रिपोर्ट्स, टाइप्स में एंड फीचर्स इसके क्या होंगे। डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन, इस तरह की केस रिपोर्ट होती है। प्रीवियसली अननोन और वेरिएंट ऑफ नोन कंडीशन, ठीक है ना, यानी पहले ही कोई अननोन है या कोई नोन कंडीशन है बट उसके कुछ वेरिएंट है, कुछ चेंज है। रीडर मस्ट अवॉइड जनरलाइजेशन ऑफ रेयर कंडीशन, यानी उसको तमाम पेशेंट्स पर अप्लाई नहीं कर सकता। एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग ऐसा है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिमूवल, ये जो है जो केस रिपोर्ट होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एडीआर के हवाले से कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर ड्रग रिमूवल। एक्सीलेंट इन आइडेंटिफाइंग रेयर एंड स्पेसिफिक एडीआर, जो रेयर हों और स्पेसिफिक और सीरियस एडीआर हों। यूटिलिटी इन आइडेंटिफाइंग एडीआर इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, बाज़ दफ़ा स्पेसिफिक पॉपुलेशन में या स्पेशल पॉपुलेशन में हमें पता चलता है कि इन पॉपुलेशन में ये एडीआर हो रही हैं। न्यू ट्रीटमेंट अप्रोच, generally used to generate a hypothesis for further testing with a more resource intensive design। तो ये एक बेसिक टूल के तौर पर यूज़ की जा सकती है कि ये एक ड्रग है जिस इस पेशेंट में ट्राई की गई है और इसके ये रिजल्ट्स आए हैं, तो होपफुली फ्यूचर में ये एक ड्रग हो सकती है। तो इसके लिए एक बड़ी जो है वो रिसोर्स इंटेंसिव स्टडी डिज़ाइन की जा सकती है। इसके अलावा मे लीड टू अनसब्सटेंशिएटेड यूज़ ऑफ मेडिकेशन फॉर अनअप्रूव्ड इंडिकेशन, कि कोई ऐसी ड्रग है जो ऑफ लेवल है, कोई ऐसी जो उसकी इंडिकेशन अप्रूव नहीं है, तो क्या उसमें यूज़ की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। किसी एक आध केस में यूज़ की गई और उसमें रिजल्ट अच्छे आए तो इसके लिए फिर फर्दर स्टडी की जा सकती है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए प्रेजेंट ए सिनेरियो टू हेल्प क्लिनिशियंस इम्प्रूव प्रैक्टिस स्किल्स, तो प्रैक्टिस स्किल्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, प्रैक्टिस एरर्स कैन इलस्ट्रेट प्रॉब्लम टू अवॉइड बाय अदर प्रैक्टिशनर्स, अगर कोई एरर के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो गई और कोई पर्टिकुलर केस डिफ़िकल्ट हो गया कोई मेडिकेशन देने से, कोई ट्रीटमेंट देने से या इंटरवेंशन देने से, तो वो प्रॉब्लम वो भी पब्लिश कर दिया तो उससे ये होगा कि ये एरर का पता चल जाएगा कि दूसरे क्लिनिशियंस इस तरह का कोई केस या इस तरह की कोई सिचुएशन को डेवलप ना होने दें। नाउ द केस रिपोर्ट स्टडी डिज़ाइन, अगर केस रिपोर्ट स्टडी डिज़ाइन जो है वो किस तरह की हो सकती हैं, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों तरह की हो सकती हैं। रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन इज़ मोर कॉमन। रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन इज़ लिमिटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड आउटकम मेजर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द एक्चुअल इवेंट, ठीक है, तो जो लिमिटेड बाय इंफॉर्मेशन क्योंकि वो ये कि पास्ट डेटा से आप उठा रहे हैं। और प्रोस्पेक्टिव केसेस रिपोर्ट्स एंटेल्स प्री प्लानिंग द प्रपोज ट्रीटमेंट अप्रोच एंड मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट, तो वो ये कि प्रोस्पेक्टिव क्योंकि आप पूरा प्लानिंग के साथ करेंगे तो इसलिए इसमें जो होगा वो मेजरमेंट ऑफ इम्पैक्ट इसका, यानी जो इसका इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा, इसकी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होंगी और आप जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स दे सकते होंगे या वैलिड रिजल्ट्स दे सकते होंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ केस रिपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द यूनिक सिचुएशन, कोई भी यूनिक सिचुएशन है उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि जिस पे आपने ये स्टडी कंडक्ट करनी है या कोई केस लेना है। केस और टू ऐड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑन द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन, यानी जो भी केस ले रहे हैं आप वो कम से कम कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करे रिसर्च के में और नॉलेज में। कॉन्सेंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम पेशेंट और नेक्स्ट ऑफ किन इफ द पेशेंट हैज़ पास्ड अवे, तो कॉन्सेंट लें, पेशेंट कॉन्सेंट इज मस्ट कि अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करने जाएंगे आगे फ्यूचर में एज ए केस रिपोर्ट, तो इसलिए पेशेंट से कंसेंट लेना ज़रूरी है कि क्या वो एग्री करता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करता है इस तरह से रिसर्च में या नहीं, या अगर वो पेशेंट पास्ट अवे हो गया है यानी एक्सपायर हो गया है तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन से ये परमिशन ज़रूर लें, या अगर कोई माइनर है, कोई डिसेबल इंडिविजुअल है जो खुद से कॉन्सेंट नहीं दे सकता तो उसके भी नेक्स्ट ऑफ किन से या उसके जो केयरर है उससे आपने वो कॉन्सेंट लेना होगा। राइट अप इन्वॉल्व्स द पेशेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द डेमोग्राफी, हिस्ट्री, टेस्ट रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट एंड टाइम कोर्स। जब भी आप ये केस रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उस पेशेंट की डेमोग्राफी क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, तमाम हिस्ट्री जो पेशेंट की करंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री, टेस्ट आपने कोई कराए तो उसके रिजल्ट्स क्या थे, क्या ट्रीटमेंट्स दिए, कितने टाइम के लिए दिए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस केस रिपोर्ट में मौजूद होनी चाहिए।
ओवरव्यू ऑफ राइटअप इन केस रिपोर्ट, आमतौर पे एक एब्स्ट्रैक्ट हो, यानी जिसमें जो केस रिपोर्ट आप लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन हो जिसमें बैकग्राउंड ऑन द मेन पॉइंट ऑफ केस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट केस मौजूद हो। डिस्कशन हो जिसमें डिस्कशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर, जो अवेलेबल लिटरेचर्स है उससे कंपेयर करके आपने जो है वो उसको डिस्कस करना है। कंक्लूजन हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट ऑफ द केस, ठीक है, जो केस होगा उसके मेन पॉइंट्स आपने वहाँ पर हाईलाइट करने होंगे। इसके अलावा क्लियर टाइटल दैट ऑप्टिमाइज एक्सेस वाया लिटरेचर सर्च, उसका टाइटल इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि अगर कोई लिटरेचर सर्चिंग करे तो वो आसानी से सर्चिंग में फाइंड आउट हो जाए। अच्छा, इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं? अगर हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें केस रिपोर्ट की, तो इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। स्ट्रेंथ क्या? आइडेंटिफाइंग और आइडेंटिफाइज रेयर अकरेंसेज, रेयर जो अकरेंसेज हैं पेशेंट की, यानी कोई आउटकम्स हैं, उनको जो है वो आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई डिलेड एडीआर्स, ये भी है क्योंकि बड़े लंबे इसके लिए केस को फॉलोअप किया जा रहा है। हाइपोथेसिस जनरेशन, फ्यूचर में कोई स्टडी, बड़ी स्टडी करनी है उसी टॉपिक पे, उसी से रिलेटेड, तो वो उसके लिए एक हाइपोथेसिस जनरेट किया जा सकता है। इवन सैम्पल साइज कैलकुलेट किया जा सकता है। रिक्वायर मिनिमल रिसोर्सेज, यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वीकनेस क्या है? नो कॉजल इन्फरेंस कैन बी मेड, यानी क्या ये वाकई उस ड्रग से या उस इंटरवेंशन से वो रिजल्ट आए, ये नहीं कह सकते आप 100%, यू आर नॉट श्योर। पोटेंशियल रिपोर्टिंग बायसेस, ये भी हो सकते हैं क्योंकि एक ही केस है। नो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसलिए आप सिग्निफिकेंस उस रिजल्ट की नहीं बता सकते कि वो पॉपुलेशन पे उसके लिए उसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स होंगे या नहीं होंगे। एंड पोटेंशियल फॉर रिपोर्टिंग फॉल्स रिजल्ट्स, ये भी मुमकिन हो सकता है कि रिजल्ट्स उसके बिल्कुल फॉल्स हों, तो ये इनकी वीकनेसेस भी हैं। इसके बाद एक केस सीरीज स्टडीज़, यानी वही केस के बजाय अब एक केस के बजाय एक से ज़्यादा केसेस होंगे सेम पेशेंट टाइप के पेशेंट्स के। सो कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पेशेंट हु हैव बीन डायग्नोज विद द सेम कंडीशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको जो डायग्नोज हुए सेम कंडीशन से और आर फॉलोइंग सिमिलर प्रोसीजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी उनको सेम प्रोसीजर से ट्रीट किया जा रहा है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डज नॉट इंक्लूड ए कंपैरिजन ग्रुप, इसमें भी कोई कंपैरिजन ग्रुप नहीं होगा, बस वही केसेस होंगे जिनको आप फॉलो अप कर रहे हैं। पुट्स टुगेदर सिंगल स्पेसिफिक केसेस, 2 केसेस, 1000 केसेस, इंक्लूड दैम इन 1 रिपोर्ट, और से आप जो है वो सिंगल स्पेसिफिक केस लें या 2 केसेस ले रहे हैं या 1000 केसेस ले रहे हैं, बट उसकी एक ही रिपोर्ट बनेगी। यूज इन सर्टेन सिनेरियो इंक्लूडिंग प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग कंडीशन और ट्रीटमेंट, तो आमतौर पे ये हम शुरू की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अगर किसी न्यू ट्रीटमेंट या कोई न्यू इंटरवेंशन डेवलप किया जा रहा है तो उसके लिए करते हैं, ये मालूम करने के लिए कि इनिशियल रिजल्ट्स उस ड्रग के या इंटरवेंशन के क्या आ रहे हैं। पर्पस क्या है ऑफ केस सीरीज? प्राइमरी पर्पस ऑफ केस सीरीज आर एवेल्यूएशन ऑफ डिजीज कोर्स, डिजीज के बारे में पता करना है कि वो डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है, एडीआर्स फॉलो कर चेक करने हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, या एवेल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस चेक करनी है ऑन स्मॉल स्केल। फाइंडिंग ऑफ केस सीरीज आर स्ट्रॉन्गर देन केस रिपोर्ट्स मेनली बिकॉज ऑफ सैम्पल साइज, क्योंकि इसमें केस सीरीज में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस होंगे और पेशेंट्स होंगे, इस वजह से इसकी फाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू केस रिपोर्ट, क्योंकि केस रिपोर्ट जो होगा वो फिर सिंगल पेशेंट पर होगा, तो यानी इसका सैम्पल साइज जो होगा केस सीरीज का ज़्यादा बड़ा होगा। केस सीरीज स्टडी डिज़ाइन कैसे होगी? स्टडी क्वेश्चन शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड अप्रोप्रिएट फॉर केस सीरीज, ठीक है, तो वाज़े तौर पर इसका एक स्टडी क्वेश्चन हो कि आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर स्टडी पॉपुलेशन मस्ट बी वेल डिस्क्राइब, कि कौन से पेशेंट इंक्लूडेड होंगे स्टडी में और कौन से एक्सक्लूडेड होंगे, तो वो भी डिस्क्राइब होना ज़रूरी है। Number of patients in the case series should be included along with the length of time it took to reach exact sample size. कितने पेशेंट थे, सैम्पल साइज क्या था, कितने ड्यूरेशन के लिए था, कौन सा पेशेंट कोई अगर जल्दी चला गया तो क्या था, क्यों रीजंस थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोअप इंक्लूडिंग एट्रिशन ऑफ पेशेंट, एट्रिशन का मतलब ये है कि कोई पेशेंट जो है वो उसने फॉलोअप स्टडी से छोड़ दिया, यानी वो स्टडी से बाहर चला गया था, वो क्यों चला गया, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद होनी चाहिए। ए थॉरो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इंटरवेंशन मस्ट बी इंक्लूडेड, जो भी इंटरवेंशन आप दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, एक ड्रग दे रहे हैं, 2 ड्रग दे रहे हैं, या सर्जरी कर रहे हैं या और कोई इंटरवेंशन दे रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद हो। ऑल आउटकम्स मेजर्स यूज शुड बी वैलिड एंड रिलायबल, जो भी आउटकम्स या रिजल्ट्स आप बता रहे हैं वो वैलिड भी हों और रिलायबल भी हो। देयर शुड बी
ब्लाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर असेसिंग द आउटकम, ताकि वो बायस ना हो। ब्लाइंडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आउटकम जब असेस किए जा रहे हो, यानी रिजल्ट्स जब असेस किए जा रहे हो, तो उसमें किसी किस्म का बायस ना आए। केस सीरीज स्टडी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एनालिसिस, डू कंपैरिजन ग्रुप। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आमतौर पे इस पे अप्लाई होगी, सच एज मीन, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज कैन बी यूज्ड। रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल वैलिडिटी शुड बी डिस्कस्ड, कि यानी वो आपकी जो जनरल पॉपुलेशन है उस पर अप्लाई हो सकते हैं उसके रिजल्ट्स या नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी। स्पेसिफिक डेटा ऑन पेशेंट फॉलोअप शुड बी इंक्लूडेड, यानी पेशेंट के फॉलोअप का डेटा मौजूद हो। सोर्स ऑफ फंडिंग और स्पॉन्सरशिप शुड बी स्टेटेड, ताकि ये पता चला जाए कि कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या बायसनेस तो नहीं है स्टडी में। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है केस सीरीज स्टडी की? स्ट्रेंथ, स्टडी रिजल्ट्स आर क्लोजर टू दोज ऑफ रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आमतौर पे बहुत सारे केसेस होते हैं सेम टाइप के, तो रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस से मैच करती है ये स्टडी। मे बी यूजफुल व्हेन आरसीटीज आर चैलेंजिंग टू कंडक्ट, यानी कई अगर यहाँ पे रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स आप नहीं कर सकते होते हैं तो ये एक गुड यूजफुल टूल है। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा वर्थ नहीं है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में इसकी, लेकिन बहरहाल अगर आरसीटीज नहीं हो तो फिर इसकी कुछ ना कुछ वर्थ तो है। हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है क्योंकि रियल लाइफ के केसेस होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग डिज़ाइन है। वीकनेसेस क्या है? नो कॉजल इन्फ्रेंस कैन बी मेड, क्योंकि बाकायदा डिज़ाइन नहीं की गई स्टडी इस पर्पस के लिए कि आप जो है वो ड्रग और उस डिजीज़ या इंटरवेंशन और डिजीज़ को के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिटरमिन कर सकें। ससेप्टेबल टू सिलेक्शन एंड मेजरमेंट बायसेस, इसमें बायस के चांस हो सकते हैं पेशेंट सिलेक्शन में भी और रिजल्ट्स में की मेजरमेंट्स में भी। एब्सोल्यूट रिस्क कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है, यानी डिजीज़ का कोई रिस्क है डेवलप हो रहा है या डेवलप हो सकता है तो उसका रिस्क नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। एंड डेटा कलेक्शन में भी इनकम्प्लीट, ये भी पॉसिबल हो सकता है। एवेल्यूएशन ऑफ केस सीरीज आमतौर पे एस्पेक्ट ऑफ एवेल्यूएशन एंड डिजायर्ड फीचर। रिसर्च क्वेश्चन क्लियरली डिफाइंड हो, डज नॉट इंक्लूड कंपैरेटिव एफिकेसी, ठीक है। स्टडी पॉपुलेशन, डिफाइन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एट्रीशन, अगर फॉलोअप का लॉस हुआ है पेशेंट का तो उसकी डिस्क्रिप्शन हो। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रैक्टिस सेटिंग, आउट पेशेंट में है, इन पेशेंट में है, हॉस्पिटल सेटिंग में है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में है, वो भी डिस्क्राइब हो। इंटरवेंशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरवेंशन और को इंटरवेंशन, जो भी इंटरवेंशन आप दे रहे हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन हो। आउटकम्स मेजर, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ मेजर, टाइम फ्रेम फॉर फॉलोअप, ब्लाइंडिंग ऑफ स्टडी है या नहीं है, सोर्स एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपने अप्लाई किया तो क्या कैलकुलेट किया है। डिस्कशन एंड कंक्लूजन में स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद द नेचर ऑफ डेटा रिपोर्टेड, जैसे डेटा में रिपोर्ट हो रहा है तो स्टेटमेंट जो हो वो उससे मैच करती हुई, ये नहीं हो कि डेटा जो रिजल्ट्स है वो कुछ और है और आप कह कुछ और रहे हैं डिस्कशन और कंक्लूजन में। फंडिंग सोर्स या कन्फ्लिक्ट अगर है तो उसको आप वहाँ पे एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फंडिंग सोर्स और अदर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप उसको क्लियरली डिक्लेयर करें अगर कोई किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जिसके साथ ही ये टॉपिक हमने जो है वो जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की टाइप्स हैं ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, फॉर योर नॉलेज, एंड यू विल गेट idea about your own research. Thank you very much.